A very warm good afternoon to all our beneficiaries. We are back here with yet another webinar on a very important health topic, that is backache, joint pain, role of good posture and physiotherapy. And to give this talk, we have with us Dr. Ankit Ruhela sir, who is a senior orthopedic specialist in the Safdarjung Hospital. On behalf of everyone, I welcome you, sir. Backache and joint pain is a very prevalent problem. Earlier, it was more prevalent in the elder age group, but these days, due to bad posture, prolonged sitting, it has been there's an increasing incidence of the same in even the younger population, making this a very important topic for these CGSS patients. So, without further ado, I guess we should begin the session. But just a small note to all our beneficiaries: whatever डाउट्स यू हैव पर्टेनिंग टू द टॉपिक, जो भी आपको इस टॉपिक से संबंधित सवाल पूछने हैं, प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा एंड वी विल टेक इट फ्रॉम द चैट बॉक्स एट द एंड ऑफ द सेशन. So over to you, sir. Hello. Thank you, ma'am, for inviting me for this webinar. So today's topic is backache, joint pain, role of good posture in physiotherapy. So it's very important to understand this topic because most of the patient coming to orthopedics OPD, जितने भी patient आते हैं, उसमें से more than 60-70% patient जो हैं, they are from for this complaint, low backache, osteoarthritis knee. So this is the most common complaint presenting into the orthopedics OPD. So here we will discuss a little bit about anatomy, जो रचना होती है बैक की, नी जॉइंट की, उसके कारण क्या हैं, पेन कैसे होता है, क्या क्या डिजेनरेशन होते हैं, और उसके बाद फिजियोथेरेपी के बारे में थोड़ा जानेंगे. गुड पोस्चर कैसे रहना चाहिए, चलते हुए, खड़े रहते हुए, बैठे हुए, और फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी चाहिए टू रिमेन फिट. तो फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द कर्वेचर ऑफ द स्पाइन. जो हमें पोस्चर है, पोस्चर मेंटेन करना है, तो जो पोस्चर मेंटेन करना है वो क्यों करना है. तो सबसे पहले हमारा ऊपर का जो रीजन होता है सर्वाइकल रीजन, उसके बाद आता है थोरैसिक, दैट इज कॉनकेव एंटीरियरली, अगेंस्ट द लंबर रीजन, दैट्स योर लॉर्डोटिक, एंड देन सैक्रम एंड कॉक्सिक्स आता है. सो मेन पोर्शन इज सर्वाइकल एंड लंबर रीजन. तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो होती है, सबसे ज़्यादा स्पॉन्डिलाइटिस भी होती है, वो सर्वाइकल एंड लंबर रीजन में होती है. रीज़न है कि पोस्चर, और सर्वाइकल रीजन को जब मोबाइल कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो वी कीप इट फ्लैक्स्ड. सो पोस्चर इज लॉर्डोटिक, इट्स कॉन्वेक्स एंटीरियरली. सो दिस इज द पोस्चर एस शेप कर्व ऑफ द स्पाइन. बाकी जो पोस्चर है वो आगे जब हमारी स्लाइड्स आएंगी तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पोस्चर कैसे मेंटेन करना है. So what are the functions of the spine? So spine protects the spinal cord and the internal organs. It supports weight and transmission, provides attachment to the muscles and movement of the spine. Lower back pain. Low back pain is the most common reason for all physicians visit. Approximately 90% of adults experience back pain at some time in life. और 90% जो है उनको किसी को एक्टिव इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट यूजुअली नहीं होती है. फ्यू शॉर्ट ड्रग थेरेपी से ठीक हो जाते हैं, एंड रेस्ट नीड फिजियोथेरेपी. सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लो बैकएक? कैन बी क्लासिफाइड मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल. सो मैकेनिकल मस्कुलर स्पैज्म हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है फैसेट जॉइंट्स का, स्पाइनल स्टेनोसिस, डिस्कोजेनिक पेन्स हो सकता है, दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेन. स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस हो सकता है, जिसमें जो वर्टिब्रीज होती हैं, स्पाइन बोन्स होती हैं, वो खिसक जाती हैं एक दूसरे के ऊपर. इंजरी, वर्टिब्रल फ्रैक्चर, और कैन बी कंजेनाइटल. Non-mechanical causes are inflammatory, ankylosing spondylitis, it could be infection, tuberculosis, herpes, osteomyelitis. And biomechanical causes are poor posture, sedentary lifestyle, and also psychological, depression, stress. We can understand pain by this diagram. So first thing is disc. In between two vertebral bone, there is a disc, white color you see in the diagram. This degeneration is the most common cause for the back pain. Rest is the vertebral fracture. It could be spondylolisthesis,
facet joint arthropathy, and spinal canal stenosis. So, what are red flag signs? When to evaluate a patient with low backache? Uh, when to get MRI done? This is important. When to proceed with investigations in low backache? If the patient's age is more than 50 years, pain is continuous for more than 6 weeks of duration, there is a history of cancer, weight loss, patient is complaining of night pain, night crisis, long history of fever with history of significant trauma, failure to improve on conservative therapy, and old age patients with osteoporosis. Other indications for evaluation, cauda equina syndrome, in which there is a sensation loss हो जाता है पेरिनियल एरिया में, बॉल बैटर का इन्वॉल्वमेंट हो जाना, पेशाब की परेशानी, साथ में जो स्फिंक्टर टोन उसका लॉस हो जाना, पेशाब अपने आप निकलने लगना, और जो वीकनेस हो रही है हाथों पैरों में वो बहुत तेजी से प्रोग्रेस करने लगे. तो ऑल दीज पॉइंट्स आर इंडिकेशन for evaluation and to get MRI, CT scan, whatever investigation we do for further evaluation. So now we come to the most common back pain. सब लोग कहते हैं कि सर L4, L5, L5S1 में परेशानी है, डिस्क की परेशानी हो गई है, पैरों में दर्द चल रहा है, शियाटिका हो गया है. तो discogenic pain is the most common cause of lower back pain, and we call it degenerative disc disease. So here is important to understand the blue structure circular you see in the diagram. It has two parts: annulus fibrosus outer part and nucleus pulposus, soft jelly material. So this jelly material comes out after tear of the annulus fibrosus, and posteriorly it compresses over the nerve that lead to uh, pain into the lower limb, also radiating pain. So this is why pain radiates to the leg, because this that degenerates after tear of the annular fibrosis coming posterior into the canal, and it can be central when it compresses both of the nerve roots coming out of this uh, spinal cord. So in that case, pain goes to the both of the limbs. Or most common is posterolateral. It goes to the either of the limb. So it's because the annulus fibrosus is the weakest or the posterolateral portion of the disc. Other positions of the disc migrations are foraminal or extraforaminal. These are not common. So what are the symptoms? Most common symptom is pain. Patient complain of pain, that is acute, chronic, insidious can be. It is a constant or intermittent pain. Pain can be to the limited to the lower back, or it can radiate also, and associated with bowel bladder involvement or weakness to the muscles that are supplied to by the nerves. So these are the tests we usually do: straight leg raising test, bowstring test, femoral stress test, Carnick's test. All these tests to look for the how much pain is there in radiation. So management part comes. So what is the goal? Goal of the therapy is, the first thing is the pain relief. After that, rehabilitation and improve quality of the life. Now we conservative treatment for this is medication, in which we give analgesics, muscle laxant, pregabalin for radicular pain, and along with that, lifestyle modification, weight reduction, limitation of the smoking, alcohol intake, psychosocial support, फिजियोथेरेपी, व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है फॉर प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव दोनों के लिए. Along with that, interventional pain management. So what is this interventional pain management? These are minor procedures. जैसे इंजेक्शन दिया जाता है उसी तरह से ये प्रोसीजर होते हैं. और डिस्क के लिए या फिर जैसे काइफोप्लास्टी हो गया, वर्टिब्रोप्लास्टी हो गया, तो इधर subcutaneous procedure to be done to relieve the pain, nucleoplasty to reduce the volume of the disc. Next.
Now we come to the knee joints. So this is the anatomy of the knee joint. Basically, two bones, femur and tibia, both of these make this joint. Along with that, there is articular cartilage over the ends of the bone, patella bone, patellofemoral, that makes the patellofemoral joint. Along with that, there are ligaments, medial, lateral and cruciate ligaments, and meniscus, जिसको गद्दी बोलते हैं, जो शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती है हमारे घुटने के अंदर. तो इन सब चीज़ों के अंदर जब डीजनरेशन होता है तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द जॉइंट बोलते हैं. तो डेफिनेशन इज इट इज ए डीजनरेटिव प्रोसेस, नॉन इन्फ्लेमेटरी, characterized by destruction of the articular cartilage and formation of new bone at the joint surfaces and margins. जैसे इस चित्र में आप देख सकते हैं, तो जो कार्टिलेज है, वाइट कलर का कार्टिलेज है, उसमें बोन एक्सपोज हो गया है, रेड रेड आप देख रहे होंगे. साथ में न्यू बोन फॉर्मेशन हो गया है, बोनी स्पर्स हैं. जो मेनिस्कस है उसके अंदर डीजनरेशन हो गया है, फिब्रिलेशंस हो जाता है, मेनिस्कल टियर हो जाते हैं डीजनरेटिव. और जो लिगामेंट्स होते हैं, क्रूशिएट लिगामेंट्स होते हैं जो बीच में स्ट्रक्चर्स हैं, उनके अंदर भी डीजनरेशन हो जाता है. तो इट कैन बी आर्थराइटिस कैन बी प्राइमरी, दैट इज इडियोपैथिक. दिस इज द मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा होने वाली आर्थराइटिस जो है घुटनों की होती है. और दूसरा सेकेंडरी हो सकती है, जो बहुत सारे कारण हैं उसकी वजह से हो सकती है. प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ज़्यादा होती है उन लोगों में जो ओबेज होते हैं, मोटे होते हैं, जेनेटिकल फैक्टर्स, occupation involving prolonged standing, and people those are in sports. Secondary arthritis, घुटने के अंदर जो एंगुलर डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं, पैर तिरछे हो जाना, वेरस वेल्गस डिफॉर्मिटी हो जाती है, इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर ऑफ द जॉइंट, रेमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फेक्शन, कोई इंजरी हो जाए जिससे जो आर्टिकुलर मार्जिन्स हैं वो आपस में रब करने लगते हैं, ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन हो जाए, हीमोफीलिया ऑल्सो लीड टू ऑस्टियोआर्थराइटिस, सिरिंगोमालिया एंड न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, डायबिटीज. क्योंकि जॉइंट में सेंसेशन नहीं रहती हैं तो उसकी वजह से जॉइंट्स खराब हो जाते हैं, चारकॉट्स जॉइंट बोलते हैं. So 1 in 3 people over 60 years are affected with this osteoarthritis. More than 3-4% over the age of 70 show some radiographic evidences of this condition. Very rarely it can be seen in younger people. Women have a greater tendency, and 50% जो है ये दोनों घुटनों में इन्वॉल्व करता है, 50% से ज़्यादा. सिम्टम्स ऑफ द आर्थराइटिस, तो सबसे पहले पेन रहेगा, घुटनों के अंदर दर्द होगा. जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ती है दिन में, जितना ज़्यादा चलते हैं तो दर्द आपका बढ़ जाता है. उसके साथ साथ मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है, सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि घुटने जैसे जकड़े हुए हैं. फिर जब चलना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे जकड़न कम हो जाती है. उसी के साथ साथ घुटने पूरे नहीं मुड़ते हैं, कई बार पूरे सीधे नहीं हो पा रहे होते हैं, पूरे मुड़ नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि हड्डियां बढ़ जाती हैं. जो बड़ी हुई हड्डियां होती हैं या फिर जो कैप्सूल होता है उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्चर आ जाते हैं, उसकी वजह से जॉइंट के मूवमेंट में लिमिटेशन हो जाता है और साथ ही साथ स्वेलिंग आ जाती है घुटनों के अंदर. कई बार देखा गया है कि जो घुटना है वो घुटना अटक भी जाता है, क्योंकि जो लूज बॉडी डेवलप हो जाती है जॉइंट के अंदर, वो अटकने लगती हैं. जैसे ही वो अटकती हैं घुटने के अंदर तो ऐसा लगता है कि घुटना लॉक हो गया, सीधा नहीं हो पा रहा है, मुड़ नहीं पा रहा है. या फिर सडनली किसी को एकदम से पेन आ जा रहा है चलते चलते, तो या तो ऑस्टियोफाइड समटाइम्स माइक्रो ऑस्टियोफाइड फ्रैक्चर हो गया, या फिर ऑस्टियोफाइड एकदम से लॉकिंग हो जाती है. जो मेनिस्कल डीजनरेट कर रहे हैं वो टियर करके लॉक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से सडन पेन भी हो सकता है. और साथ में जो आपकी मांसपेशियां हैं फिर वो धीरे धीरे वेस्टिंग होने लगती हैं, वो सिकुड़ने लगती हैं, क्योंकि हम चल ठीक से नहीं पा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो मांसपेशियां जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं. तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट जो है हम करते हैं, सबसे पहले तो है कि हमें दर्द को रिलीव करना है. दूसरा जो हमारे फंक्शंस हैं, फंक्शंस को रिस्टोर करना है. जो डिसेबिलिटी है, पेशेंट कुछ काम नहीं कर पा रहा है, घूम नहीं पा रहा है, वॉक करने के लिए जाना है उसको वॉक नहीं कर पा रहा है, साइकिलिंग नहीं कर पा रहा है, उन सबको रिस्टोर करना है. और जो कंडीशंस हैं जहां हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो उसमें फिर रिहेबिलिटेट करना है पेशेंट को. सो नॉन फार्माकोलॉजिकल जो मेथड्स हैं उसमें सबसे पहले तो है आपका वेट अगर ज़्यादा है तो वजन को कम करिए, एक्सरसाइज करनी है, घुटने की एक्सरसाइज करनी है, जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है,
जो स्टेशनरी साइकिल होती है उसका यूज़ कर सकते हैं आप क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथनिंग के लिए। असिस्टिव डिवाइसेस होती हैं, केन आप यूज़ कर सकते हैं, वॉकर यूज़ कर सकते हैं। एंड टू इंक्रीज द कार्डियक एंड पल्मोनरी, तो उसके लिए आप एरोबिक एक्सरसाइजेस करिए, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी। एंड स्विमिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर नॉट ओनली फॉर द नी बट यस for all the group of muscles and cardiopulmonary functions. Now we come to the mechanical aid. Mechanical aids to just reduce the pain by the support. So first thing is cane. हाथ में जो छड़ी लेके चलना है तो बहुत अच्छा रोल है छड़ी का। जिस तरफ आपको दर्द है उस तरफ छड़ी लेनी होती है हाथ में। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि छड़ी की लेंथ कितनी होनी चाहिए। कुछ लोग छड़ी लेके चल रहे हैं, छड़ी ऊपर तक चेस्ट तक आ रहा है, उसको लेके चल रहे हैं। कुछ लोग छड़ी की जो लेंथ है बहुत कम है, घुटने से थोड़ा ऊपर ही है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपका छड़ी है वो आपके पैर में, जैसे बाहर की तरफ से आप देख रहे हैं, तो नीचे छोटी वाली उंगली के एंट्रोलैटरल उसको छड़ी को रखना है। और जो आपकी हिप बोन की हड्डी आप फील करते हैं हिप में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, वहां तक उसकी लेंथ होनी चाहिए, जिसको हम ग्रेटर ट्रोकेंटर बोलते हैं, हिप की जो हड्डी होती है। या फिर दूसरा ये भी मान सकते हैं कि आपका एल्बो जो है वो 90 डिग्री पोजीशन में होना चाहिए जब आप कुछ छड़ी को लेके सीधे खड़े हुए हैं। तो दैट इज द राइट लेंथ ऑफ द केन। दूसरा शू इंसर्ट्स आते हैं, आप जूते पहनिए जिसके अंदर स्पॉन्जी होते हैं थोड़े। आजकल इंसोल आते हैं, सिलिकॉन इंसोल आते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं, जो शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। अदर थिंग इज लेटरल हील वेजेस, पोस्टरोलेटरल जो आपको हील वेज आप लगाते हैं तो उससे जो आर्थराइटिस होता है, जो मीडियल आर्थराइटिस होता है, जो अंदर की तरफ, अधिकतर जो आर्थराइटिस वो अंदर की तरफ होता है घुटने में, जिसको मीडियल कंपार्टमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। तो उसके लिए लेटरल साइड में थोड़ा शू रेस करते हैं तो उससे उस दर्द में आराम मिलता है। और लास्ट में जो आपके आते हैं ऑफ लोडर ब्रेसेस आते हैं, जो मीडियल कंपार्टमेंट को ऑफलोड करते हैं। दे हैव सम फोर्सेस दैट ओपन्स द मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द नी व्हाइल वॉकिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जॉइंट में, नी जॉइंट के अंदर जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस को रिलीव करना है। उसको रिलीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पालथी मार के ना बैठें, क्रॉस लेग सिटिंग। बिकॉज पालथी मार के बैठना, उखड़ू बैठना, जो स्क्वेटिंग पोजीशंस हो गई, इसकी वजह से नी के अंदर स्ट्रेस बढ़ जाते हैं और जिन लोगों को आर्थराइटिस हो रहा होता है वो और तेजी से प्रोग्रेस करता है। अलॉन्ग विद दैट, जो लॉन्ग स्टैंडिंग है, लॉन्ग स्टैंडिंग आपको नहीं करनी है और रनिंग को अवॉइड करिए। बिकॉज रनिंग की वजह से एक्सियल कंप्रेशन आता है नी जॉइंट में और उससे डीजेनरेशन जल्दी होता है जॉइंट में। So for this osteoarthritis we have many surgical procedures also. So कुछ लोग जो हैं इसमें आर्थ्रोस्कोपिक डिब्राइडमेंट करते हैं जॉइंट के। कुछ प्रोसीजर्स हैं जो आज, ये सारे आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर हैं जो फोकल डेफिसिट्स होते हैं कार्टिलेज के, नॉट ए ग्लोबल वन जिसमें पूरी जॉइंट में आर्थराइटिस हो गई है, उसके लिए तो नहीं है ये, बट लेकिन जैसे कुछ इंजरी हो गया, उसमें कार्टिलेज का डिफेक्ट आ गया, तो उसके अंदर ये सारे प्रोसीजर करे जाते हैं। माइक्रो फ्रैक्चर किया जाता है जिससे थोड़ा बहुत अंदर से फाइब्रो कार्टिलेज ग्रो कर जाता है। ऑस्टियो आर्टिकुलर ट्रांसफर सिस्टम होता है जिसमें बोन प्लग्स निकाल के नॉर्मल साइड से जो वेट बियरिंग पोर्शंस होते हैं, जहाँ पे हम वजन लेके चल रहे होते हैं घुटने में, वहां पर डाल दिया जाता है। मोज़ेकोप्लास्टी भी उसी तरह से हुआ जिसमें स्मॉल मल्टीपल प्लग्स जो हैं वो ट्रांसफर किए जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज ऑटोलोगस कॉन्ट्रोसाइट इम्प्लांटेशन, जिसमें आपके घुटने से कार्टिलेज का एक पीस लेकर उसको, कार्टिलेज को, कॉन्ट्रोसाइट्स को ग्रो किया जाता है और फिर बाद में जो कार्टिलेज डिफेक्ट है घुटने के अंदर उसको वहां पर डाल दिया जाता है। वी कम टू द फिजियोथेरेपी पार्ट। उससे पहले बट यस, कुछ आर्थराइटिस के लिए जो है आपको बताना चाहूँगा कि कुछ और ऑपरेशंस भी होते हैं जिसमें हड्डी को काट के सीधा किया जाता है, जिससे जो मीडियल जॉइंट आर्थराइटिस हो रही है उसके अंदर पेन के अंदर रिलीफ हो जाए। जो ओल्ड एज पेशेंट हैं, ओनली मीडियल जॉइंट आर्थराइटिस है, उसके अंदर यूनी कंपार्टमेंट जो है नी रिप्लेसमेंट भी होता है। और जिसमें पूरी तरह से घुटना खराब हो गया है, ग्रेड 3 ग्रेड 4 आर्थराइटिस है,
तो उस कंडीशन में हम जो है टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट की जो है सर्जरी करी जाती है. Now we come to the physiotherapy. So what is physiotherapy? It is treatment through physical energy generated by physical source. So it could be electrotherapeutic modalities or physiotherapeutic exercises and exercise equipments. Equipments are like you use a circle wheel for the shoulder. This is bicycle, you use stationary bicycle in the gym, quadriceps table. So all these equipments used to strengthen the bone. तो फिजियोथेरेपी इट कुड बी एक्टिव एक्सरसाइजेज और पैसिव एक्सरसाइजेज. अगर पेशेंट आपका मूव कर सकता है जॉइंट को, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, कोई न्यूरोलॉजिकल नहीं है, कोई जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर नहीं है, तो उसमें एक्टिव एक्सरसाइजेज करनी होती हैं. एक्टिव एक्सरसाइज कैन बी आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक. पैसिव एक्सरसाइजेज होती हैं जब पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है तो दूसरा जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है फिर उसके जॉइंट मूवमेंट में हेल्प करता है. So what are the goals of physiotherapy? Goals of physiotherapy, first is preventive, next is promotive and rehabilitative. Preventive again कि परेशानी को होने ही क्यों दिया जाए. अगर आप उसको एक्सरसाइज पहले से ही करते रहें कोई बीमारी को आने से पहले तो वो डेफिनेटली बेटर है. प्रोमोटिव व्हेन डिजीज इज देयर, आप हीलिंग को प्रमोट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेस. And rehabilitative when the disease is there, now there's rehabilitation to be done for that. So effect of electrotherapeutic modalities, there are so many electrotherapeutic modalities are there. So what are the effects? सबसे पहला हीट, जो गर्मी होती है उससे एक पेन रिलीफ होता है और स्पैज्म रिड्यूस होता है. हीलिंग ऑफ द टिश्यू, जो अल्ट्रासोनिक थेरेपी हो गया आपकी और लेजर थेरेपी हो गई, ये सब क्या है, ये आपकी जो एक्टिविटीज हैं फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं और टिश्यू की हीलिंग को प्रमोट करते हैं. एंड जो टिश्यू में इडीमा होता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, सूजन आ रही होती है, उसको ट्रीट करने के लिए क्रायोथेरेपी होती है. So these all are electrotherapeutic modalities. Shortwave diathermy, microwave diathermy, these are heating therapy. इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उनको यूज करके हीट प्रोड्यूस करी जाती है और टिश्यू को हीट अप किया जाता है. और लेजर थेरेपी होती है, लो डोज लेजर थेरेपी होती है. अल्ट्रासोनिक थेरेपी, अल्ट्रासाउंड से जो है टिश्यू का जो सूजन हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गया है, उसको रिड्यूस किया जाता है. एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव थेरेपी है, इंटरफेरेंशियल थेरेपी, टेंस, दीज आर बेसिकली करंट थेरेपीज, पेन पाथवे पे काम करते हैं और जो दर्द होता है उसको कम करते हैं. और मसल स्टिमुलेटर्स होते हैं, जिन लोगों को मसल वीकनेस हो गई है, मसल मास कम है, तो उसको मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए मसल स्टिमुलेटर से स्टिमुलेट करते हैं प्रायर टू स्टार्ट फिजियोथेरेपी. नाउ वी कम टू द गुड पोस्चर. तो हियर वी सी वाइल स्टैंडिंग, वाइल वॉकिंग, मोबाइल आजकल एक मस्ट हो गया है. मोबाइल किस तरह से करना चाहिए, क्या पोजीशन रखनी चाहिए, सिटिंग, वाइल लिफ्टिंग वेट. तो जब आप खड़े हैं तो खड़े रहते हुए जो आपका पोस्चर है स्ट्रेट रखने के लिए आपका जो ईयर हो गया, शोल्डर हो गया, हिप जॉइंट हो गया एंड एंकल हो गया, शुड बी इन स्ट्रेट लाइन. So that is the right posture to stand. The first one that you see, it is standing with neck forward. So that is not the correct. In this position, the neck is coming into concavity anteriorly. But what I showed in the first picture, it is convex anteriorly. So this is not the exact posture. The next is while walking. Walking should be the same way, and it should be with the proper swing of the hands. In this you see the weightlifting, the pic in which the one is forward bending and one is with straight back, bending of the hip and knee. So when you are lifting any heavy object, it's important to keep the back straight and bend your knee and hip joint. So that reduces the stress over the back, because this is the posture of the spine that leads to degeneration, start of the degeneration in the disc, that lead to annular tear in the disc. जो हमारी डिस्क होती है वो पीछे की तरफ से फट जाती है और फिर जो
चीजी मटेरियल होता है एनुलस न्यूक्लियस पल्पोसस दैट कम्स आउट एंड कंप्रेसेस ओवर द nerve. So best posture is flex your hip, flex your knee, and then lift. If it is required, if you can avoid it, then it's good. Sleeping, do not use very large pillow, use thin pillow. और market में cervical pillows available हैं, you can use those pillows. So because they are thin centrally, और जब आप दूसरी तरफ करवट ले लेते हैं, then you need, because your neck sets down. So उसके लिए आपके लिए lateral में जब आप lateral position में जाएंगे तो थोड़ा सा up चाहिए pillow. So for that you can use cervical pillow. Bed orthopedic mattresses that keeps the spine straight. If it is hard bed, just like if you sleep on the ground, so on lateral position you can see the curvature of the spine. And if it is जो आपके झूलने वाले बेड होते हैं उसमें भी आपकी पोस्चर सोते हुए मेंटेन नहीं रह पाती है, तो यस, यूज ऑर्थोपेडिक मैट्रेसेस. सो दिस इज द पोस्चर वाइल स्टैंडिंग. सीधे खड़े रहना है, गर्दन को आगे नहीं झुकाना है, घुटनों को मोड़ के नहीं रखना है. शायद थर्ड इमेज में आप देख रहे होंगे बैली को प्रोट्रूड आउट किया हुआ, ऐसे भी नहीं करना है. दिस ऑल्सो एग्रीवेट्स द लॉर्डोसिस ऑफ द स्पाइन एंड इंक्रीजेस द cavity of the cervical spine. So best is neck, shoulder, hip, all this should be in the one line. While sitting doing work on the desk, so the same thing should be followed. Back properly supported, neck extended, the monitor should be at the level of the eye, and with that, hip at 90-degree, thigh horizontal to the floor, and foot comfortably resting on the ground. So this is the right posture while you are sitting doing work on the desk. When you are writing something, then you can use slanted tables are there, so as you can increase the angle of your table. So while doing mobile, because कोई भी मोबाइल के बिना तो आजकल रह नहीं पाता है, तो गर्दन को झुका के नहीं रखना है, गर्दन को सीधा रखना है. हाथ को ऊपर उठाइए, मोबाइल को अपनी आंखों के सामने लेकर आइए. So this is the right posture while doing standing and sitting. The same way you can put some pillow or some bag on that. You can put your laptop, you can put your iPad, mobile, whatever. So now we come to the exercise part after posture. So next exercise are to be done various जो cervical problems होती हैं, cervical spondylitis, cervical radiculopathy, overuse, muscle stress, and dizziness and vertigo. So neck exercises we can divide into isometric and isotonic. In isometric exercises, the one thing I want to tell you, if pain is too much, बहुत ज़्यादा दर्द है, तो बहुत ज़्यादा दर्द में एक्सरसाइज नहीं करनी होती हैं, उस टाइम रेस्ट करना होता है. और जब धीरे धीरे दर्द में आराम हो जाता है, आप दवाई लेते हैं, रेस्ट करते हैं, तो जब दर्द में आराम हो जाता है तो फिर एक्सरसाइज शुरू करनी है. दर्द में एक्सरसाइजेज नहीं करनी है. माइनर पेन है तो हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज करते हैं जिसके अंदर अगेंस्ट रेजिस्टेंस, जैसे इसने माथे पे हाथ रखा हुआ है, पेशेंट ने माथे पे हाथ रख के गर्दन से आगे पुश कर रहे हैं, गर्दन पे पीछे हाथ रख के पीछे पुश कर रहे हैं, साथ में साइड में कर सकते हैं. तो दीज आर जब, और कम से कम जो है 6 से लेकर 10 सेकंड तक एक डायरेक्शन में रोकना है. और कम से कम मिनिमम जो मैं बता रहा हूँ सारी एक्सरसाइजेस के लिए है, ये आगे आने वाली जितनी भी हैं, 10 सेकंड के लिए एटलीस्ट आप रोकिए उसको. और इनिशियली रिपीटिशन 10 रिपीटिशन करिए. 10 रिपीटिशन के यू कैन हैव 3 सेट्स. तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज हैं जिसमें आप अगेंस्ट रेजिस्टेंस करते हैं. एंड आइसोटोनिक है जब आपका पेन रिलीफ हो गया है, नाउ यू वांट टू गेन द मूवमेंट ऑफ द नेक, देन यू कैन डू मूवमेंट एक्सरसाइजेज, फॉरवर्ड फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, sideways, and rotation. So these are the exercises for the neck. For the back, there are exercises like hamstring stretch, core strengthening, straight leg raising exercises, back extension exercises, and cat camel exercises. So these are the core strengthening exercises. You raise your leg, you can flex your knee also. You can do it simultaneously or one by one. Ab holding exercises, you in the prone position,
I will say wrist knee position, and you squeeze your uh, abdomen inside and release it. And this is opposite arm and leg raise, as you see in the figure. So these all are core strengthening exercises. This is active leg raise exercises. एक पैर को आप ऊपर उठाएंगे, मिनिमम 6 to 10 seconds के लिए वेट करेंगे, फिर उसको नीचे रखेंगे, फिर दूसरे पैर को करेंगे इसी तरह से, और उसी तरह से आप बना लीजिए जो रिपीटिशन करना है और सेट्स करने हैं. 10 रिपीटिशन 3 सेट्स. दिस इज हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच. पोस्चर में आप देख रहे हैं एक पैर मुड़ा हुआ है, एक पैर सीधा है, तो राइट साइड की हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए एक्सरसाइज है ये. बॉडी को आगे फ्लेक्स करना है और पैर को सीधा रखना है. These are the spinal extension exercises. अगर आप, बहुत जरूरी नहीं है कि जो आप फोर्थ फिगर देख रहे हैं वहां तक जाना है. इनिशियल आप फर्स्ट फिगर से करिए, थोड़ा थोड़ा करिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज. फर्स्ट, सेकंड, इफ यू आर कंफर्टेबल देन यू कैन कम अप टू द फोर्थ इमेज. दर्द ज्यादा है और जिन लोगों को स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस है, कैनाल स्टेनोसिस की प्रॉब्लम है, उन लोगों को एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज नहीं करनी होती हैं, उससे दर्द बढ़ जाता है. ये है कैट कैमल एक्सरसाइजेज. एक बार छाती को ऊपर की तरफ निकालना है पेट के साथ, फिर दूसरा बार जब आप उसको रिलीज करते हैं तो फिर आगे जैसे कैमल होता है उसकी तरह करना है. तो दीज ऑल आर एक्सरसाइज फॉर द बैक स्ट्रेंथनिंग. नाउ वी कम टू द शोल्डर. Again, for shoulder, frozen shoulder, subacromial bursitis, supraspinatus tendinitis, rotator cuff tear, for all these exercise pathologies, pains, we do exercise. First thing is to gain the motion and then do the strengthening. So need to do scapular stabilization exercises, then rotation, range of motion exercises, and shoulder strengthening exercises, cuff strengthening exercises. Here we can see this is pendulum exercises. You can see, just start if there is too much of pain. In that case, simple pendulum exercises can be done, like the pendulum moves. You can move your bending forward, just moving the arm. हाथ को चलाना है जैसे पेंडुलम चलता है. फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस, फॉरवर्ड फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस हो गई जिसमें आप हाथ ऊपर की तरफ उठाते हैं. एबडक्शन एक्सरसाइजेस हो गई, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, along with this protraction and retraction exercises. तो ये जो है आपका स्कैपुला को स्टेबलाइज करती हैं और साथ में जो रोटेटर कफ मसल्स हैं हमारे कंधे के अंदर, उनकी स्ट्रेंथनिंग करती है. Elbow pain, tennis elbow, golfer's elbow, myositis ossificans, elbow stiffness, for all these, for elbow के लिए हमारी एक्सरसाइज होती हैं. पहले तो अगेन पैसिव एक्सरसाइजेज इफ यू आर नॉट एबल टू डू योरसेल्फ. फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज हैं, एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज हैं, प्रोनेशन, सुपिनेशन एक्सरसाइजेज हैं. तो ये सारी एक्सरसाइजेज करनी है. और अलॉन्ग विद दैट जब आप मूवमेंट आ जाता है तो थेरा बैंड से भी आप ये सारी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं. तो थेरा बैंड और रेजिस्टेंस बैंड होते हैं जो कलर से मार्क्ड होते हैं विद मिनिमम रेजिस्टेंस टू इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस. तो इंक्रीजिंग फ्रॉम मिनिमम रेजिस्टेंस आप थेरा बैंड्स यूज कर सकते हैं, उससे आप एल्बो की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. Now we come to the hip pain, osteoarthritis, hip groin pain, hip flexion deformity, gluteus medius weakness, gluteus maximus weakness. So here you do hip flexion, extension, abductor strengthening, adductor strengthening, and these are basically you can do on machines also. In gyms different machines होती हैं abductor strengthening के लिए, adductor strengthening के लिए, और you can simply do against resistance जैसे इसमें दिखा रहे हैं. साइड करवट ले लीजिए, एक पैर को ऊपर लेके जाइए, फिर दूसरे पैर को ऊपर लेकर जाइए. और एडक्शन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए यू कैन यूज जिम एक्सरसाइजेस, जिम मशीन्स फॉर दैट. नाउ वी कम टू द नी पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी फ्यूजन, नी बर्साइटिस, ओवर यूज. सो बेसिकली जो हमारे दो ग्रुप ऑफ मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग्स. क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए. तो साइकिलिंग इज वेरी गुड फॉर दैट, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग. हैमस्ट्रिंग्स के लिए आप प्रोन पोजीशन में
विथ थेराबैंड भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, और बेटर टू डू यूज क्वाड्रिसेप्स टेबल होती है, जिसमें आप दोनों तरह की क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस है, परेशानी है, किसी जॉइंट में पेन है, तो काइनेजियो टेपिंग होती है। तो काइनेजियो टेपिंग से जो आपकी ग्रुप ऑफ मसल्स हैं, हम उसके अंदर थोड़ी सी सपोर्ट कर देता है वो उन ग्रुप ऑफ मसल्स को। जॉइंट है, अगर जॉइंट में पेन है तो वहाँ पे के टेपिंग कर देते हैं। आपने देखा होगा स्पोर्ट्स पर्सन जो है कई बार वो लगा के रखते हैं, जो जस्ट आफ्टर इंजरी दे गो बैक टू देयर स्पोर्ट्स। So these are various shapes for the kinesio taping. Now we come to the orthotics, जो braces होते हैं वो सर्वाइकल के लिए, लोअर बैक के लिए और ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए हम कौन कौन से यूज़ करते हैं। वैसे तो हर जॉइंट के लिए ब्रेस यूज़ किया जा सकता है, बट दीज आर मोस्ट कॉमन जो हम यूज़ करते हैं। ऑर्थोसिस जो ब्रेस है वो तभी यूज़ करना है जब दर्द बहुत ज़्यादा हो, और हमेशा कंटिन्यूस इसको लगा के नहीं रखना है, क्योंकि जो ऑर्थोसिस है जो उसकी वजह से जो हमारी मांसपेशियां होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, और हमको उन्हीं को स्ट्रांग बनाना है। अगर हम ब्रेसेस यूज़ करेंगे तो मांसपेशियां जो हैं वो वीक हो जाएंगी अगर हम इसको कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे। अगर दर्द है, गर्दन के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द नहीं रहता है आपको, कहीं आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करने में आपको लगता है कि गर्दन में ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो सॉफ्ट सर्वाइकल कॉलर आता है। ओनली एट द टाइम ऑफ ट्रैवलिंग आप यूज़ कर सकते हैं इसको, जो आप फिगर में देख रहे हैं ब्राउन कलर का। राइट साइड में जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं, दिस इज हार्ड सर्वाइकल कॉलर। जिन लोगों को ज़्यादा दर्द होता है और थोड़ा भी मूवमेंट में पेन हो रहा है इनिशियली, तो सॉफ्ट की जगह दे कैन यूज़ हार्ड सर्वाइकल कॉलर। और जो थर्ड आप नीचे देख रहे हैं, दिस इज फिलाडेल्फिया कॉलर। ये जो सर्वाइकल स्पाइन इंजरीज होती हैं, दिस इज फॉर द रिजिड फिक्सेशन ऑफ द स्पाइन। तो जो अगर फ्रैक्चर हो गया है, कुछ इस तरह की परेशानी है, तो उसको फिक्स करने के लिए फिलाडेल्फिया कॉलर का यूज़ किया जाता है। जो बैक एक की परेशानी है, जो जिन लोगों में खाली लोअर बैक एक है, तो ये लंबोसेक्टरल बेल्ट है जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। बट वही मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है इसको, ओनली एट द टाइम अगर बहुत ज़्यादा एक्यूट पेन आपको परसिस्ट कर रहा है, दर्द बहुत ज़्यादा है, या फिर ट्रैवलिंग आप कर रहे हैं, बम्पी रोड्स हैं, बहुत ज़्यादा जर्क लग रहे हैं, देन डेफिनेटली यूज़ इट वाइल ट्रैवलिंग। और दूसरा जो आप देख रहे हैं, दिस इज हाई टेलर ब्रेस, जो बेसिकली जो काइफोटिक, कई बार ओल्ड एज में भी आपको फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो उस चीज़ को जो अपर फ्रैक्चर्स होते हैं डोर्सल स्पाइन के, तो उनको सपोर्ट करने के लिए ये हाई टेलर ब्रेस होता है। एंड फॉर द नी, दिस इज नी कैप, लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, इट इज जस्ट टू सपोर्ट द नी while you are walking, when the pain is too much you can use. And other one is offloader orthosis, black one. तो जो है आप जब मीडियल जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है उसके अंदर इसको यूज़ करते हैं। तो थैंक यू। तो ओवरऑल जो है हमारा इससे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है किसी भी जो लो बैक हो गया या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस जॉइंट्स हो गया, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है इनिशियली एक्सरसाइज का। आपको ये पता होना चाहिए एक्सरसाइज कैसे करनी है, क्या तरीका है करने का। मसल्स अगर स्ट्रांग रहेंगी तो एज के साथ डिजनरेशन जॉइंट्स के अंदर होना है, विच इज़ जैसे कि रिंकलिंग ऑफ द स्किन हो जाता है, उसी तरह आर्थराइटिस भी जॉइंट के अंदर होता है। बट अगर आपकी मांसपेशियां स्ट्रांग होंगी तो आपको उसका पता नहीं चलेगा, दर्द ज़्यादा नहीं होगा, होगा तो थोड़ा बहुत दर्द होगा। अगर उसी मांसपेशियां वीक हैं तो सारा का सारा जो वेट है आपका वो जॉइंट पे आ जाएगा। जब मांसपेशियां स्ट्रांग होती हैं तो आपके वेट को शेयर करती हैं, तो मांसपेशियों में ऐसा नहीं होता कि वो दर्द हो जाएगा, बट जब वो स्ट्रांग होती हैं तो जॉइंट हमारा पेनफुल स्टिमुलस देता है, डिजनरेट हो जाता है और पेन होता है। तो मांसपेशियां स्ट्रांग होंगी तो जॉइंट का डिजनरेशन कम होगा। ये सभी जॉइंट्स के लिए एप्लीकेबल है, नी के लिए नहीं है, एल्बो, शोल्डर, तो सभी की एक्सरसाइज करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, इवनिंग वॉक करिए, और एक्सरसाइज करते रहिए, और पोस्चर को अपना मेंटेन रखिए, क्योंकि जैसे ही पोस्चर बिगड़ता है वैसे ही दर्द शुरू हो जाते हैं। और जो सिटिंग जॉब वाले लोग हैं, बीच बीच में उठते रहिए, थोड़ा 1 घंटे काम किया, फिर 5 मिनट उठे, थोड़ा स्ट्रेच किया,
बॉडी स्ट्रेच किया, तो इन सब चीज़ों से जो है ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, होती भी हैं तो पता नहीं चलता है, पेन ज़्यादा नहीं होता है। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, काफ़ी डिटेल में बट काफ़ी सिंपल तरीके से यू हैव एक्सप्लेन्ड हाउ people can take care of their joints, especially simple methods that we need to focus on, such as correct posture. Even when using mechanical aids, there are certain minute points such as the length, etc., जो हमें ध्यान रखना है so that we can take. थैंक यू। A very warm good afternoon to all our beneficiaries. We are back here with yet another webinar on a very important health topic, that is backache, joint pain, role of good posture, and physiotherapy. And to give this talk, we have with us Dr. Ankit Ruhela sir, who is a senior orthopedic specialist in the Safdarjung Hospital. On behalf of everyone, I welcome you, sir. Backache and joint pain is a very prevalent problem. Earlier, it was more prevalent in the elder age group, but these days, due to bad posture, prolonged sitting, it has been there's an increasing incidence of the same in even the younger population, making this a very important topic for these CGHS patients. So, without further ado, I guess we should begin the session. But just a small note to all our beneficiaries: whatever डाउट्स यू हैव पर्टेनिंग टू द टॉपिक, जो भी आपको इस टॉपिक से संबंधित सवाल पूछने हैं, प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा एंड वी विल टेक इट फ्रॉम द चैट बॉक्स एट द एंड ऑफ द सेशन. सो ओवर टू यू सर. Hello, thank you ma'am for inviting me for this webinar. So today's topic is backache, joint pain, role of good posture in physiotherapy. So it's very important to understand this topic because most of the patient coming to orthopedics OPD, जितने भी patient आते हैं उसमें से more than 60-70% patient जो हैं they are from for this complaint, low backache, osteoarthritis knee. So this is the most common complaint presenting into the orthopedics OPD. So here we will discuss a little bit about anatomy, जो रचना होती है बैक की, नी जॉइंट की, उसके कारण क्या हैं, पेन कैसे होता है, क्या क्या डिजेनरेशन होते हैं, और उसके बाद फिजियोथेरेपी के बारे में थोड़ा जानेंगे, गुड पोस्चर कैसे रहना चाहिए, चलते हुए, खड़े रहते हुए, बैठे हुए, और फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी चाहिए टू रिमेन फिट. सो तो फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द कर्वेचर ऑफ द स्पाइन. जो हमें पोस्चर है, पोस्चर मेंटेन करना है, तो जो पोस्चर मेंटेन करना है वो क्यों करना है. तो सबसे पहले हमारा ऊपर का जो रीजन होता है सर्वाइकल रीजन, उसके बाद आता है थोरैसिक, दैट इज कॉनकेव एंटीरियरली, अगेंस्ट द लंबर रीजन, दैट्स योर लॉर्डोटिक, एंड देन सैक्रम एंड कॉक्सिक्स आता है. सो मेन पोर्शन इज सर्वाइकल एंड लंबर रीजन. तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो होती है, सबसे ज़्यादा स्पॉन्डिलाइटिस भी होती है, वो सर्वाइकल एंड लंबर रीजन में होती है. रीज़न है कि पोस्चर, और सर्वाइकल रीजन को जब मोबाइल कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो वी कीप इट फ्लैक्स्ड. सो पोस्चर इज लॉर्डोटिक, इट्स convex anteriorly. So this is the posture S shaped curve of the spine. बाकी जो पोस्चर है वो आगे जब हमारी स्लाइड्स आएंगी तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पोस्चर कैसे मेंटेन करना है. So what are the functions of the spine? So spine protects the spinal cord and the internal organs. It supports weight and transmission, provides attachment to the muscles and movement of the spine. Lower back pain. Low back pain is the most common reason for all physicians visit. Approximately 90% of adults experience back pain at some time in life. और 90% जो है उनको किसी को एक्टिव इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट यूजुअली नहीं होती है. फ्यू शॉर्ट ड्रग थेरेपी से ठीक हो जाते हैं, एंड रेस्ट नीड फिजियोथेरेपी. सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लो बैकएक? कैन बी क्लासिफाइड मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल. सो मैकेनिकल मस्कुलर स्पैज्म हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है फैसेट जॉइंट्स का, स्पाइनल स्टेनोसिस, डिस्कोजेनिक पेन्स हो सकता है, दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेन. स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस हो सकता है जिसमें जो वर्टिब्रीज होती हैं, स्पाइन बोन्स होती हैं, वो खिसक जाती हैं एक दूसरे के ऊपर. इंजरी, वर्टिब्रल फ्रैक्चर, और कैन बी कंजेनाइटल.
Non-mechanical causes are inflammatory, ankylosing spondylitis. It could be infection, tuberculosis, herpes, osteomyelitis. And biomechanical causes are poor posture, sedentary lifestyle, and also psychological, depression, stress. We can understand pain by this diagram. So first thing is disc. In between two vertebral bone, there is a disc, white color you see in the diagram. This degeneration is the most common cause for the back pain. Rest is the vertebral fracture. It could be spondylolisthesis, facet joint arthropathy, and spinal canal stenosis. So, what are red flag signs? When to evaluate a patient with low backache? Uh, when to get MRI done? This is important. When to proceed with investigations in low backache? If the patient's age is more than 50 years, pain is continuous for more than 6 weeks of duration, there is a history of cancer, weight loss, patient is complaining of night pain, night crisis, long history of fever with history of significant trauma, failure to improve on conservative therapy, and old age patients with osteoporosis. Other indications for evaluation, cauda equina syndrome, in which there is a sensation loss हो जाता है पेरिनियल एरिया में, बॉल बैटर का इन्वॉल्वमेंट हो जाना, पेशाब की परेशानी, साथ में जो स्फिंक्टर टोन उसका लॉस हो जाना, पेशाब अपने आप निकलने लगना, और जो वीकनेस हो रही है हाथों पैरों में वो बहुत तेजी से प्रोग्रेस करने लगे. तो ऑल दीज पॉइंट्स आर इंडिकेशन for evaluation and to get MRI, CT scan, whatever investigation we do for further evaluation. So now we come to the most common back pain. सब लोग कहते हैं कि सर L4, L5, L5S1 में परेशानी है, डिस्क की परेशानी हो गई है, पैरों में दर्द चल रहा है, शियाटिका हो गया है. तो discogenic pain is the most common cause of lower back pain, and we call it degenerative disc disease. So here is important to understand the blue structure circular you see in the diagram. It has two parts, annulus fibrosus outer part and nucleus pulposus, soft jelly material. So this jelly material comes out after tear of the annulus fibrosus, and posteriorly it compresses over the nerve that lead to pain into the lower limb, also radiating pain. So this is why pain radiates to the leg, because that degenerates after tear of the annular fibrosis coming posterior into the canal, and it can be central when it compresses both of the nerve roots coming out of this uh, spinal cord. So in that case, pain goes to the both of the limbs. Or most common is posterolateral. It goes to the either of the limb. So it's because the annulus fibrosus is the weakest or the posterolateral portion of the disc. Other positions of the disc migrations are foraminal or extraforaminal. These are not common. So what are the symptoms? Most common symptom is pain. Patient complain of pain, that is acute, chronic, insidious can be. It is a constant or intermittent pain. Pain can be limited to the lower back, or it can radiate also, and associated with bowel bladder involvement or weakness to the muscles that are supplied by the nerves. So these are the tests we usually do: straight leg raising test, bowstring test, femoral stress test, Carnick's test. All these tests to look for the how much pain is there in radiation. So management part comes. So what is the goal? Goal of the therapy is, the first thing is the pain relief. After that, rehabilitation and improve quality of the life. Now we conservative treatment for this is medication, in which we give analgesics, muscle laxant, pregabalin for radicular pain, and along with that, lifestyle modification, weight reduction,
limitation of the smoking, alcohol intake, psychosocial support, फिजियोथेरेपी, व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है फॉर प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव दोनों के लिए. Along with that, interventional pain management. So what is this interventional pain management? These are minor procedures. जैसे इंजेक्शन दिया जाता है उसी तरह से ये प्रोसीजर होते हैं. और डिस्क के लिए या फिर जैसे काइफोप्लास्टी हो गया, वर्टिब्रोप्लास्टी हो गया, तो इधर subcutaneous procedure to be done to relieve the pain, nucleoplasty to reduce the volume of the disc. Next. Now we come to the knee joints. So this is the anatomy of the knee joint. Basically, two bones, femur and tibia, both of these make this joint. Along with that, there is articular cartilage over the ends of the bone, patella bone, patellofemoral, that makes the patellofemoral joint. Along with that, there are ligaments, medial, lateral, and cruciate ligaments, and meniscus, जिसको गद्दी बोलते हैं, जो शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती है हमारे घुटने के अंदर. तो इन सब चीज़ों के अंदर जब डीजनरेशन होता है तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द जॉइंट बोलते हैं. तो डेफिनेशन इज इट इज a degenerative process, non-inflammatory, characterized by destruction of the articular cartilage and formation of new bone at the joint surfaces and margins. जैसे इस चित्र में आप देख सकते हैं, तो जो कार्टिलेज है, वाइट कलर का कार्टिलेज है, उसमें बोन एक्सपोज हो गया है, रेड रेड आप देख रहे होंगे. साथ में न्यू बोन फॉर्मेशन हो गया है, बोनी स्पर्स हैं. जो मेनिस्कस है उसके अंदर डीजनरेशन हो गया है, फिब्रिलेशन हो जाता है, मेनिस्कल टीयर हो जाते हैं डीजनरेटिव. और जो लिगामेंट्स होते हैं, क्रूशिएट लिगामेंट्स होते हैं जो बीच में स्ट्रक्चर्स हैं, उनके अंदर भी डीजनरेशन हो जाता है. तो इट कैन बी आर्थराइटिस कैन बी प्राइमरी, दैट इज इडियोपैथिक. दिस इज द मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा होने वाली आर्थराइटिस जो है घुटनों की होती है. और दूसरा सेकेंडरी हो सकती है, जो बहुत सारे कारण हैं उसकी वजह से हो सकती है. प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ज़्यादा होती है उन लोगों में जो ओबेज होते हैं, मोटे होते हैं, जेनेटिकल फैक्टर्स, occupation involving prolonged standing, and people those are in sports. Secondary arthritis, घुटने के अंदर जो एंगुलर डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं, पैर तिरछे हो जाना, वेरस वेल्गस डिफॉर्मिटी हो जाती है, इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर ऑफ द जॉइंट, रेमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फेक्शन, कोई इंजरी हो जाए जिससे जो आर्टिकुलर मार्जिन्स हैं वो आपस में रब करने लगते हैं, ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन हो जाए, हीमोफीलिया ऑल्सो लीड टू ऑस्टियोआर्थराइटिस, सिरिंगोमालिया एंड न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, डायबिटीज. क्योंकि जॉइंट में सेंसेशन नहीं रहती हैं तो उसकी वजह से जॉइंट्स खराब हो जाते हैं, चारकॉट्स जॉइंट बोलते हैं. So 1 in 3 people over 60 years are affected with this osteoarthritis. More than 3-4% over the age of 70 show some radiographic evidences of this condition. Very rarely it can be seen in younger people. Women have a greater tendency, and 50% जो है ये दोनों घुटनों में इन्वॉल्व करता है, 50% से ज़्यादा. सिम्टम्स ऑफ द आर्थराइटिस, तो सबसे पहले पेन रहेगा, घुटनों के अंदर दर्द होगा. जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ती है दिन में, जितना ज़्यादा चलते हैं तो दर्द आपका बढ़ जाता है. उसके साथ साथ मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है, सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि घुटने जैसे जकड़े हुए हैं. फिर जब चलना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे जकड़न कम हो जाती है. उसी के साथ साथ घुटने पूरे नहीं मुड़ते हैं, कई बार पूरे सीधे नहीं हो पा रहे होते हैं, पूरे मुड़ नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि हड्डियां बढ़ जाती हैं. जो बड़ी हुई हड्डियां होती हैं या फिर जो कैप्सूल होता है उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्चर आ जाते हैं, उसकी वजह से जॉइंट के मूवमेंट में लिमिटेशन हो जाता है और साथ ही साथ स्वेलिंग आ जाती है घुटनों के अंदर. कई बार देखा गया है कि जो घुटना है वो घुटना अटक भी जाता है, क्योंकि जो लूज बॉडी डेवलप हो जाती है जॉइंट के अंदर, वो अटकने लगती हैं. जैसे ही वो अटकती हैं घुटने के अंदर तो ऐसा लगता है कि घुटना लॉक हो गया, सीधा नहीं हो पा रहा है, मुड़ नहीं पा रहा है. या फिर सडनली किसी को एकदम से पेन आ जा रहा है चलते चलते, तो या तो ऑस्टियोफाइड समटाइम्स माइक्रोऑस्टियोफाइड फ्रैक्चर हो गया, या फिर ऑस्टियोफाइड एकदम से लॉकिंग हो जाती है. जो मेनिस्कल डीजनरेट कर रहे हैं वो टियर करके लॉक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से सडन पेन भी हो सकता है. और साथ में जो आपकी मांसपेशियां हैं फिर वो धीरे धीरे वेस्टिंग होने लगती हैं, वो सिकुड़ने लगती हैं, क्योंकि हम चल ठीक से नहीं पा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो मांसपेशियां जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं.
तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट जो है हम करते हैं, सबसे पहले तो है कि हमें दर्द को रिलीव करना है। दूसरा जो हमारे फंक्शंस हैं, फंक्शंस को रिस्टोर करना है। जो डिसेबिलिटी है, पेशेंट कुछ काम नहीं कर पा रहा है, घूम नहीं पा रहा है, वॉक करने के लिए जाना है, उसको वॉक नहीं कर पा रहा है, साइकिलिंग नहीं कर पा रहा है, उन सबको रिस्टोर करना है। और जो कंडीशंस हैं जहां हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उसमें फिर रिहेबिलिटेट करना है पेशेंट को। सो नॉन फार्माकोलॉजिकल जो मेथड्स हैं, उसमें सबसे पहले तो है आपका वेट अगर ज़्यादा है तो वजन को कम करिए, एक्सरसाइज करनी है, घुटने की एक्सरसाइज करनी है, जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है, जो स्टेशनरी साइकिल होती है उसका यूज़ कर सकते हैं आप क्वाड्रिसेप्स ट्रेनिंग के लिए। असिस्टिव डिवाइसेस होती हैं, केन आप यूज़ कर सकते हैं, वॉकर यूज़ कर सकते हैं। एंड टू इंक्रीज द कार्डियक एंड पल्मोनरी, तो उसके लिए आप एरोबिक एक्सरसाइजेस करिए, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी। एंड स्विमिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर नॉट ओनली फॉर द नी बट यस for all the group of muscles and cardiopulmonary functions. Now we come to the mechanical aid. Mechanical aids to just reduce the pain by the support. The first thing is cane. हाथ में जो छड़ी लेके चलना है, तो बहुत अच्छा रोल है छड़ी का। जिस तरफ आपको दर्द है उस तरफ छड़ी लेनी होती है हाथ में। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि छड़ी की लेंथ कितनी होनी चाहिए। कुछ लोग छड़ी लेके चल रहे हैं, छड़ी ऊपर तक चेस्ट तक आ रहा है, उसको लेके चल रहे हैं। कुछ लोग छड़ी की जो लेंथ है बहुत कम है, घुटने से थोड़ा ऊपर ही है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपका छड़ी है वो आपके पैर में, जैसे बाहर की तरफ से आप देख रहे हैं, तो नीचे छोटी वाली उंगली के एंट्रोलैटरल उसको छड़ी को रखना है। और जो आपकी हिप बोन की हड्डी आप फील करते हैं हिप में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, वहां तक उसकी लेंथ होनी चाहिए, जिसको हम ग्रेटर ट्रोकेंटर बोलते हैं, हिप की जो हड्डी होती है। या फिर दूसरा ये भी मान सकते हैं कि आपका एल्बो जो है वो 90 डिग्री पोजीशन में होना चाहिए जब आप कुछ छड़ी को लेके सीधे खड़े हुए हैं, तो दैट इज द राइट लेंथ ऑफ द केन। दूसरा शू इंसर्ट्स आते हैं, आप जूते पहनिए जिसके अंदर स्पॉन्जी होते हैं थोड़े, आजकल इंसोल आते हैं, सिलिकॉन इंसोल आते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं, जो शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। अदर थिंग इज लेटरल हील वेजेस, पोस्टरोलेटरल जो आपको हील वेज आप लगाते हैं, तो उससे जो आर्थराइटिस होता है, जो मीडियल आर्थराइटिस होता है, जो अंदर की तरफ, अधिकतर जो आर्थराइटिस वो अंदर की तरफ होता है घुटने में, जिसको मीडियल कंपार्टमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। तो उसके लिए लेटरल साइड में थोड़ा शू रेस करते हैं, तो उससे उस दर्द में आराम मिलता है। और लास्ट में जो आपके आते हैं ऑफ लोडर ब्रेसेस आते हैं, जो मीडियल कंपार्टमेंट को ऑफलोड करते हैं। दे हैव सम फोर्सेस दैट ओपन्स द मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द नी व्हाइल वॉकिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जॉइंट में, नी जॉइंट के अंदर जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस को रिलीव करना है। उसको रिलीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पालथी मार के ना बैठें, क्रॉस लेग सिटिंग, बिकॉज पालथी मार के बैठना, उखड़ू बैठना, जो स्क्वेटिंग पोजीशंस हो गई, इसकी वजह से नी के अंदर स्ट्रेस बढ़ जाते हैं, और जिन लोगों को आर्थराइटिस हो रहा होता है वो और तेजी से प्रोग्रेस करता है। अलॉन्ग विद दैट, जो लॉन्ग स्टैंडिंग है, लॉन्ग स्टैंडिंग आपको नहीं करनी है, और रनिंग को अवॉइड करिए, बिकॉज रनिंग की वजह से एक्सियल कंप्रेशन आता है नी जॉइंट में, और उससे डीजेनरेशन जल्दी होता है जॉइंट में। So for this osteoarthritis we have many surgical procedures also. So कुछ लोग जो हैं इसमें आर्थ्रोस्कोपिक डिब्राइडमेंट करते हैं जॉइंट के। कुछ प्रोसीजर्स हैं जो, आज ये सारे आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर हैं जो फोकल डेफिसिट्स होते हैं कार्टिलेज के, नॉट ए ग्लोबल वन जिसमें पूरी जॉइंट में आर्थराइटिस हो गई है, उसके लिए तो नहीं है ये, बट लेकिन जैसे कुछ इंजरी हो गया, उसमें कार्टिलेज का डिफेक्ट आ गया, तो उसके अंदर ये सारे प्रोसीजर करे जाते हैं। माइक्रो फ्रैक्चर किया जाता है जिससे थोड़ा बहुत अंदर से फाइब्रो कार्टिलेज ग्रो कर जाता है। ऑस्टियो आर्टिकुलर ट्रांसफर सिस्टम होता है जिसमें बोन प्लग्स निकाल के नॉर्मल साइड से जो वेट बियरिंग पोर्शंस होते हैं, जहाँ पे हम वजन लेके चल रहे होते हैं घुटने में, वहाँ पर डाल दिया जाता है। मोज़ाइकोप्लास्टी भी उसी तरह से हुआ, जिसमें स्मॉल मल्टीपल प्लग्स जो हैं वो ट्रांसफर किए जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज ऑटोलोगस कॉन्ड्रोसाइट इम्प्लांटेशन, जिसमें आपके घुटने से कार्टिलेज का एक पीस लेकर उसको, कार्टिलेज को, कॉन्ड्रोसाइट्स को ग्रो किया जाता है,
और फिर बाद में जो कार्टिलेज डिफेक्ट है घुटने के अंदर उसको वहां पर डाल दिया जाता है. We come to the physiotherapy part. उससे पहले बट यस कुछ आर्थराइटिस के लिए जो है आपको बताना चाहूँगा कि कुछ और ऑपरेशंस भी होते हैं जिसमें हड्डी को काट के सीधा किया जाता है, जिससे जो मीडियल जॉइंट आर्थराइटिस हो रही है उसके अंदर पेन के अंदर रिलीफ हो जाए. जो ओल्ड एज पेशेंट हैं, ओनली मीडियल जॉइंट आर्थराइटिस है, उसके अंदर यूनी कंपार्टमेंट जो है नी रिप्लेसमेंट भी होता है. और जिसमें पूरी तरह से घुटना खराब हो गया, ग्रेड 3 ग्रेड 4 आर्थराइटिस है, तो उस कंडीशन में हम जो है टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट की जो है सर्जरी करी जाती है. Now we come to the physiotherapy. So what is physiotherapy? It is treatment through physical energy generated by physical source. So it could be electrotherapeutic modalities or physiotherapeutic exercises and exercise equipments. Equipments are like you use a circle wheel for the shoulder. This is bicycle, you use stationary bicycle in the gym, quadriceps table. So all these equipments used to strengthen the bone. तो फिजियोथेरेपी इट कुड बी एक्टिव एक्सरसाइजेज और पैसिव एक्सरसाइजेज. अगर पेशेंट आपका मूव कर सकता है जॉइंट्स को, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, कोई न्यूरोलॉजिकल नहीं है, कोई जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर नहीं है, तो उसमें एक्टिव एक्सरसाइजेज करनी होती हैं. एक्टिव एक्सरसाइज कैन बी आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक. पैसिव एक्सरसाइजेज होती हैं जब पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है तो दूसरा जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है फिर उसके जॉइंट मूवमेंट में हेल्प करता है. So what are the goals of physiotherapy? Goals of physiotherapy, first is preventive, next is promotive and rehabilitative. Preventive again कि परेशानी को होने ही क्यों दिया जाए, अगर आप उसको एक्सरसाइज पहले से ही करते रहें कोई बीमारी को आने से पहले तो वो डेफिनेटली बेटर है. प्रोमोटिव व्हेन डिजीज इज देयर, आप हीलिंग को प्रमोट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेस. And rehabilitative when the disease is there, now there's rehabilitation to be done for that. So effect of electrotherapeutic modalities, there are so many electrotherapeutic modalities are there. So what are the effects? सबसे पहला हीट, जो गर्मी होती है उससे एक पेन रिलीफ होता है और स्पैज्म रिड्यूस होता है. हीलिंग ऑफ द टिश्यू, जो अल्ट्रासोनिक थेरेपी हो गया आपकी और लेजर थेरेपी हो गई, ये सब क्या है, जो आपकी जो एक्टिविटीज हैं फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं और टिश्यू की हीलिंग को प्रमोट करते हैं. एंड जो टिश्यू में इडीमा होता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, सूजन आ रही होती है, उसको ट्रीट करने के लिए क्रायोथेरेपी होती है. So these all are electrotherapeutic modalities. Short wave diathermy, microwave diathermy, these are heating therapy. इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उनको यूज करके हीट प्रोड्यूस करी जाती है और टिश्यू को हीट अप किया जाता है. और लेजर थेरेपी होती है, लो डोज लेजर थेरेपी होती है. अल्ट्रासोनिक थेरेपी, अल्ट्रासाउंड से जो है टिश्यू का जो सूजन हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गया है, उसको रिड्यूस किया जाता है. एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरेपी है, इंटरफेरेंशियल थेरेपी, टेंस, दीज आर बेसिकली करंट थेरेपीज, पेन पाथवे पे काम करते हैं और जो दर्द होता है उसको कम करते हैं. और मसल स्टिमुलेटर्स होते हैं, जिन लोगों को मसल वीकनेस हो गई है, मसल मास कम है, तो उसको मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए मसल स्टिमुलेटर से स्टिमुलेट करते हैं प्रायर टू स्टार्ट फिजियोथेरेपी. नाउ वी कम टू द गुड पोस्चर. तो हियर वी सी वाइल स्टैंडिंग, वाइल वॉकिंग, मोबाइल आजकल एक मस्ट हो गया है. मोबाइल किस तरह से करना चाहिए, क्या पोजीशन रखनी चाहिए, सिटिंग, वाइल लिफ्टिंग वेट. तो जब आप खड़े हैं तो खड़े रहते हुए जो आपका पोस्चर है स्ट्रेट रखने के लिए आपका जो ईयर हो गया, शोल्डर हो गया, हिप जॉइंट हो गया एंड एंकल हो गया शुड बी इन स्ट्रेट लाइन. So that is the right posture to stand. And the first one that you see, it is standing with neck forward. So that is not the correct. In this position, the neck is coming into concavity anteriorly. But what I showed in the first picture, it is convex anteriorly. So this is not the exact posture. The next is while walking. Walking should be the same way. And it should be with the proper swing of the hands. In this, you see the weight lifting
the pic in which the one is forward bending and one is with straight back, bending of the hip and knee. So when you are lifting any heavy object, it's important to keep the back straight and bend your knee and hip joint. So that reduces the stress over the back, because this is the posture of the spine that leads to degeneration, start of the degeneration in the disc, that lead to annular tear in the disc. जो हमारी डिस्क होती है वो पीछे की तरफ से फट जाती है, और फिर जो चीजी मटेरियल होता है एनुलस, जो न्यूक्लियस पल्पोसस, दैट कम्स आउट एंड कंप्रेसेस ओवर द nerve. So best posture is flex your hip, flex your knee, and then lift. If it is required, if you can avoid it, then it's good. Sleeping, do not use very large pillow, use thin pillow, और market में cervical pillows available हैं, you can use those pillows. So because they are thin centrally, और जब आप दूसरी तरफ करवट ले लेते हैं, then you need, because your neck sags down, so उसके लिए आपके लिए lateral में जब आप lateral position में जाएंगे तो थोड़ा सा up चाहिए pillow, so for that you can use cervical pillow. Bed orthopedic mattresses that keeps the spine straight. If it is hard bed, just like if you sleep on the ground, so on lateral position you can see the curvature of the spine. And if it is जो आपके झूलने वाले बेड होते हैं, उसमें भी आपकी पोस्चर सोते हुए मेंटेन नहीं रह पाती है, तो यस, यूज ऑर्थोपेडिक मैट्रेसेस. सो दिस इज द पोस्चर वाइल स्टैंडिंग. सीधे खड़े रहना है, गर्दन को आगे नहीं झुकाना है, घुटनों को मोड़ के नहीं रखना है. शायद थर्ड इमेज में आप देख रहे होंगे बैली को प्रोट्रूड आउट किया हुआ, ऐसे भी नहीं करना है. दिस ऑल्सो एग्रीवेट्स द लॉर्डोसिस ऑफ द स्पाइन and increases the cavity of the cervical spine. So best is neck, shoulder, hip, all this should be in the one line. While sitting, doing work on the desk, so the same thing should be followed. Back properly supported, neck extended, the monitor should be at the level of the eye, and with that, hip at 90-degree, thigh horizontal to the floor, and foot comfortably resting on the ground. So this is the right posture while you are sitting doing work on the desk. When you are writing something, then you can use slanted tables are there, so as you can increase the angle of your table. सो वाइल डूइंग मोबाइल, बिकॉज कोई भी मोबाइल के बिना तो आजकल रह नहीं पाता है, तो गर्दन को झुका के नहीं रखना है, गर्दन को सीधा रखना है, हाथ को ऊपर उठाइए, मोबाइल को अपनी आंखों के सामने लेकर आइए. सो दिस इज द राइट पोस्चर वाइल डूइंग स्टैंडिंग एंड सिटिंग. द सेम वे यू कैन पुट सम पिलो or some bag on that you can put your laptop, you can put your iPad, mobile, whatever. So now we come to the exercise part after posture. So next exercise are to be done various जो cervical problems होती हैं, cervical spondylitis, cervical radiculopathy, overuse, muscle stress, and dizziness and vertigo. So neck exercises we can divide into isometric and isotonic. In isometric exercises, the one thing I want to tell you, if pain is too much, बहुत ज़्यादा दर्द है, तो बहुत ज़्यादा दर्द में एक्सरसाइज नहीं करनी होती हैं, उस टाइम रेस्ट करना होता है. और जब धीरे धीरे दर्द में आराम हो जाता है, आप दवाई लेते हैं, रेस्ट करते हैं, तो जब दर्द में आराम हो जाता है तो फिर एक्सरसाइज शुरू करनी है. दर्द में एक्सरसाइजेज नहीं करनी है. माइनर पेन है तो हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करते हैं, जिसके अंदर अगेंस्ट रेजिस्टेंस, जैसे इसने माथे पे हाथ रखा हुआ है, पेशेंट ने माथे पे हाथ रख के गर्दन से आगे पुश कर रहे हैं, गर्दन पे पीछे हाथ रख के पीछे पुश कर रहे हैं, साथ में साइड में कर सकते हैं. तो दीज आर जब, और कम से कम जो है 6 से लेकर 10 सेकंड तक एक डायरेक्शन में रोकना है. और कम से कम मिनिमम जो मैं बता रहा हूँ सारी एक्सरसाइजेस के लिए है, ये आगे आने वाली जितनी भी हैं, 10 सेकंड के लिए एटलीस्ट आप रोकिए उसको. और इनिशियली रिपीटिशन 10 रिपीटिशन करिए, 10 रिपीटिशन के यू कैन हैव 3 सेट्स. तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज हैं जिसमें आप अगेंस्ट रेजिस्टेंस करते हैं. एंड आइसोटोनिक है जब आपका पेन रिलीफ हो गया है, नाउ यू वांट टू गेन द मूवमेंट ऑफ द नेक, देन यू कैन डू मूवमेंट एक्सरसाइजेस, फॉरवर्ड फ्लेक्शन, एक्सटेंशन,
sideways, and rotation. So these are the exercises for the neck. For the back, there are exercises like hamstring stretch, core strengthening, straight leg raising exercises, back extension exercises, and cat camel exercises. So these are the core strengthening exercises. You raise your leg, you can flex your knee also. You can do it simultaneously or one by one. Ab holding exercises, you in the prone position, uh, I will say wrist knee position, and you squeeze your uh, abdomen inside and release it. And this is opposite arm and leg raise, as you see in the figure. So these all are core strengthening exercises. This is active leg raise exercises. एक पैर को आप ऊपर उठाएंगे, मिनिमम 6 to 10 seconds के लिए वेट करेंगे, फिर उसको नीचे रखेंगे, फिर दूसरे पैर को करेंगे इसी तरह से, और उसी तरह से आप बना लीजिए जो रिपीटिशन करना है और सेट्स करने हैं. 10 repetition 3 sets. This is hamstring stretch. पोस्चर में आप देख रहे हैं एक पैर मुड़ा हुआ है, एक पैर सीधा है, तो राइट साइड की हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए एक्सरसाइज है ये. बॉडी को आगे फ्लेक्स करना है और पैर को सीधा रखना है. These are the spinal extension exercises. अगर आप, बहुत जरूरी नहीं है कि जो आप फोर्थ फिगर देख रहे हैं वहां तक जाना है. इनिशियल आप फर्स्ट फिगर से करिए, थोड़ा थोड़ा करिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज. First, second, if you are comfortable, then you can come up to the fourth image. दर्द ज़्यादा है और जिन लोगों को स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस है, कैनाल स्टेनोसिस की प्रॉब्लम है, उन लोगों को एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज नहीं करनी होती हैं, उससे दर्द बढ़ जाता है. ये है कैट कैमल एक्सरसाइजेज. एक बार छाती को ऊपर की तरफ निकालना है पेट के साथ, फिर दूसरा बार जब आप इसको रिलीज करते हैं तो फिर आगे जैसे कैमल होता है उसकी तरह करना है. तो these all are exercise for the back strengthening. Now we come to the shoulder. Again, for shoulder, frozen shoulder, subacromial bursitis, supraspinatus tendinitis, rotator cuff tear. For all these exercise pathologies, pains, we do exercise. First thing is to gain the motion and then do the strengthening. So need to do scapular stabilization exercises, then rotation, range of motion exercises, and shoulder strengthening exercises, cuff strengthening exercises. Here we can see this is pendulum exercises. You can see, just start if there is too much of pain. In that case, simple pendulum exercises can be done. Like the pendulum moves, you can move your bending forward, just moving the arm. हाथ को चलाना है जैसे पेंडुलम चलता है. फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस, फॉरवर्ड फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस हो गई जिसमें आप हाथ ऊपर की तरफ उठाते हैं. एबडक्शन एक्सरसाइजेस हो गई, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, along with this protraction and retraction exercises. तो ये जो है आपका स्कैपुला को स्टेबलाइज करती हैं और साथ में जो रोटेटर कफ मसल्स हैं हमारे कंधे के अंदर, उनकी स्ट्रेंथनिंग करती है. Elbow pain, tennis elbow, golfer's elbow, myositis ossificans, elbow stiffness. For all these, for elbow के लिए हमारी exercise होती हैं. पहले तो again passive exercises if you are not able to do yourself. Flexion exercises हैं, extension exercises हैं, pronation, supination exercises हैं. तो ये सारी exercises करनी है. और along with that, जब आप movement आ जाता है तो थेरा बैंड से भी आप ये सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. तो थेरा बैंड और रेजिस्टेंस बैंड होते हैं जो कलर से मार्क्ड होते हैं विद मिनिमम रेजिस्टेंस टू इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस. तो इंक्रीजिंग फ्रॉम मिनिमम रेजिस्टेंस आप थेरा बैंड्स यूज कर सकते हैं, उससे आप एल्बो की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. नाउ वी कम टू द हिप पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, हिप ग्रोइन पेन, हिप फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, ग्लूटियस मीडियस वीकनेस, ग्लूटियस मैक्सिमस वीकनेस. So here you do hip flexion, extension, abductor strengthening, adductor strengthening, and these are basically you can do on machines also. In gyms different machines होती हैं abductor strengthening के लिए, adductor strengthening के लिए, और you can simply do against resistance जैसे इसमें दिखा रहे हैं.
साइड करवट ले लीजिए, एक पैर को ऊपर लेके जाइए, फिर दूसरे पैर को ऊपर लेकर जाइए, और एडक्शन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए यू कैन यूज जिम एक्सरसाइजेस, जिम मशीन्स फॉर दैट. Now we come to the knee pain, osteoarthritis, knee fusion, knee bursitis, overuse. So basically जो हमारे दो ग्रुप ऑफ मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग्स. क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए. तो साइकिलिंग इज वेरी गुड फॉर दैट, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग. हैमस्ट्रिंग्स के लिए आप प्रोन पोजीशन में विथ थेराबैंड भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, और बेटर टू डू यूज क्वाड्रिसेप्स स्टेबल होती है, जिसमें आप दोनों तरह की क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं. सो अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस है, परेशानी है, किसी जॉइंट में पेन है, तो काइनेजियो टेपिंग होती है. तो काइनेजियो टेपिंग से जो आपकी ग्रुप ऑफ मसल्स हैं, हम उसके अंदर थोड़ी सी सपोर्ट कर देता है वो उन ग्रुप ऑफ मसल्स को. जॉइंट है, अगर जॉइंट में पेन है तो वहाँ पे के टेपिंग कर देते हैं. आपने देखा होगा स्पोर्ट्स पर्सन जो है कई बार वो लगा के रखते हैं, जो जस्ट आफ्टर इंजरी दे गो बैक टू देयर स्पोर्ट्स. So these are various shapes for the kinesio taping. Now we come to the orthotics. जो braces होते हैं वो सर्वाइकल के लिए, लोअर बैक के लिए और ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए हम कौन कौन से यूज़ करते हैं. वैसे तो हर जॉइंट के लिए ब्रेस यूज़ किया जा सकता है, बट दीज आर मोस्ट कॉमन जो हम यूज़ करते हैं. ऑर्थोसिस जो ब्रेस है वो तभी यूज़ करना है जब दर्द बहुत ज़्यादा हो, और हमेशा कंटिन्यूस इसको लगा के नहीं रखना है, क्योंकि जो ऑर्थोसिस है जो उसकी वजह से जो हमारी मांसपेशियां होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, और हमको उन्हीं को स्ट्रांग बनाना है. अगर हम ब्रेसेस यूज़ करेंगे तो मांसपेशियां जो हैं वो वीक हो जाएंगी अगर हम इसको कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे. अगर दर्द है, गर्दन के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द नहीं रहता है आपको, कहीं आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करने में आपको लगता है कि गर्दन में ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो सॉफ्ट सर्वाइकल कॉलर आता है. ओनली एट द टाइम ऑफ ट्रैवलिंग आप यूज़ कर सकते हैं इसको, जो आप फिगर में देख रहे हैं ब्राउन कलर का. राइट साइड में जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं, दिस इज हार्ड सर्वाइकल कॉलर. जिन लोगों को ज़्यादा दर्द होता है और थोड़ा भी मूवमेंट में पेन हो रहा है इनिशियली, तो सॉफ्ट की जगह दे कैन यूज़ हार्ड सर्वाइकल कॉलर. और जो थर्ड आप नीचे देख रहे हैं, दिस इज फिलाडेल्फिया कॉलर. ये जो सर्वाइकल स्पाइन इंजरीज होती हैं, दिस इज फॉर द रिजिड फिक्सेशन ऑफ द स्पाइन. तो जो अगर फ्रैक्चर हो गया है, कुछ इस तरह की परेशानी है, तो उसको फिक्स करने के लिए फिलाडेल्फिया कॉलर का यूज़ किया जाता है. जो बैक एक की परेशानी है, जो जिन लोगों में खाली लोअर बैक एक है, तो ये लंबोसेक्टरल बेल्ट है जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं. बट वही मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है इसको. ओनली एट द टाइम अगर बहुत ज़्यादा एक्यूट पेन आपको परसिस्ट कर रहा है, दर्द बहुत ज़्यादा है, या फिर ट्रैवलिंग आप कर रहे हैं, बम्पी रोड्स हैं, बहुत ज़्यादा जर्क लग रहे हैं, देन डेफिनेटली यूज़ इट वाइल ट्रैवलिंग. और दूसरा जो आप देख रहे हैं, दिस इज हाई टेलर ब्रेस, जो बेसिकली जो काइफोटिक, कई बार ओल्ड एज में भी आपको फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो उस चीज़ को, जो अपर फ्रैक्चर्स होते हैं डॉर्सल स्पाइन के, तो उनको सपोर्ट करने के लिए ये हाई टेलर ब्रेस होता है. एंड फॉर द नी, दिस इज नी कैप. लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, इट इज जस्ट टू सपोर्ट द नी while you are walking. When the pain is too much, you can use. And other one is offloader orthosis, black one. तो जो है, आप जब मीडियल जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है उसके अंदर इसको यूज करते हैं. तो थैंक यू. तो ओवरऑल जो है हमारा, इससे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, किसी भी जो लो बैक हो गया या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस जॉइंट्स हो गया, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है इनिशियली एक्सरसाइज का. आपको ये पता होना चाहिए एक्सरसाइज कैसे करनी है, क्या तरीका है करने का. मसल्स अगर स्ट्रांग रहेंगी तो एज के साथ डिजनरेशन जॉइंट्स के अंदर होना है, विच इज जैसे कि रिंकलिंग ऑफ द स्किन हो जाता है, उसी तरह आर्थराइटिस भी जॉइंट के अंदर होता है. बट अगर आपकी मांसपेशियां स्ट्रांग होंगी तो आपको उसका पता नहीं चलेगा, दर्द ज़्यादा नहीं होगा, होगा तो थोड़ा बहुत दर्द होगा. अगर उसी मांसपेशियां वीक हैं तो सारा का सारा जो वेट है आपका, वो जॉइंट पे आ जाएगा. जब मांसपेशियां स्ट्रांग होती हैं तो आपके वेट को शेयर करती हैं, तो मांसपेशियों में ऐसा नहीं होता कि वो दर्द हो जाएगा, बट जब वो स्ट्रांग होती हैं तो जॉइंट हमारा पेनफुल स्टिमुलस
देता है, डिजनरेट हो जाता है और पेन होता है। तो मांसपेशियां स्ट्रांग होंगी तो जॉइंट का डिजनरेशन कम होगा। ये सभी जॉइंट्स के लिए एप्लीकेबल है, नी के लिए नहीं है, एल्बो, शोल्डर, तो सभी की एक्सरसाइज करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, इवनिंग वॉक करिए और एक्सरसाइज करते रहिए और पोस्चर को अपना मेंटेन रखिए, क्योंकि जैसे ही पोस्चर बिगड़ता है वैसे ही दर्द शुरू हो जाते हैं। और जो सिटिंग जॉब वाले लोग हैं, बीच बीच में उठते रहिए, थोड़ा 1 घंटे काम किया, फिर 5 मिनट उठे, थोड़ा स्ट्रेच किया, बॉडी स्ट्रेच किया, तो इन सब चीज़ों से जो है ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, होती भी हैं तो पता नहीं चलता है, पेन ज़्यादा नहीं होता है। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, काफी डिटेल में